track number 3I. In this track, recording has been done from page number 168 to page number 173. It covers recording of section C, literature, textual comprehension, A, prose section, chapter 4. The Rat Trap, चूहेदानी. Author Selma Lagerlof. Translation of the lesson. पाठ का अनुवाद. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. अनुवाद. एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो तार के बने चूहेदानी बेचता हुआ घूमा करता था. वह उसे अपने बचे हुए समय में बनाया करता था और उन चीज़ों से बनाता था जो उसे दुकानों से या बड़े बड़े फार्मों से भीख के रूप में मिल जाया करता था. लेकिन फिर भी यह व्यवसाय विशेष रूप से लाभ वाला नहीं था, इसीलिए उसे भीख मांगने और छोटी छोटी चोरी का सहारा लेना पड़ता था. अर्थात स्वयं को जीवित रखने के लिए यह काम करना पड़ता था. फिर भी उसके कपड़े फटे हुए रहते थे, उसके गाल धसे हुए और भूख उसकी आंखों में चमका करती थी. इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस तरह से घूमकर जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदास और नीरस हो सकता है, जो सड़क पर मारा मारा फिर रहा हो और अपने ही विचारों में खोया हुआ रहता हो. लेकिन एक दिन यह व्यक्ति विचारों की ऐसी श्रेणी में लग गया जो उसे वास्तव में मनोरंजक महसूस हुई. स्वाभाविक रूप से वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था. उसी समय उसे यह विचार सूझा
कि उसके चारों तरफ पूरा संसार, जिसमें पूरी ज़मीन और सागर तथा शहर और गांव आ जाते हैं, एक बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसका तात्पर्य लोगों को लालच देने के अतिरिक्त कभी और कुछ भी नहीं था। यह धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, सुखद गर्मी और कपड़ा बटोरता था, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार चूहेदानी में पनीर और सुअर का मांस बटोरा जाता है। और जो ही कोई स्वयं को उस लालच के आकर्षण में आने देता है, यह उसके ऊपर बंद हो जाता है और फिर हर चीज़ खत्म हो जाती है। संसार निश्चित रूप से उसके प्रति दयालु नहीं था, इसीलिए उसे इस ढंग से उसके बारे में बुरा सोचकर असाधारण खुशी प्रतीत होती थी। उसके लिए यह एक मनपसंद, मन बहलाने वाला साधन बन गया था। अनेक थका देने वाली घिसटती हुई यात्राओं के बीच ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि वे खुद को उस भयंकर जाल में फंसा चुके थे, और अन्यों के बारे में जो कभी उस लालच के आसपास चक्कर काट रहे थे। एक अंधेरी शाम जब वह थके पांव सड़क पर चला जा रहा था, उसे सड़क के किनारे एक भूरे रंग की छोटी झोपड़ी दिखाई दी और उसने रात भर के लिए शरण की मांग के लिए दरवाज़ा खटखटाया। न ही उसे कोई मनाई हुई। गुस्से वाली चेहरों की बजाय जो प्रायः उसे देखने को मिलते थे, वहाँ का मालिक, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बिना पत्नी या बच्चे वाला, उसे खुशी हुई कि उसके अकेलेपन में उससे बातें करने के लिए वहाँ उसे कोई मिल गया था। तुरंत उसने दलिए वाला बर्तन आग पर रखा और उसे खाने के लिए शाम का भोजन दिया। फिर उसने अपने तंबाकू वाले रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया जो अजनबी के पाइप और उसके अपने पाइप दोनों के लिए पर्याप्त था। अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली तथा सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ ताश का एक खेल यानी मजोलिस खेलता रहा। ग्लोसरी: रैट ट्रैप्स, इक्विपमेंट्स फॉर कैचिंग रैट, चूहे पकड़ने की चूहेदानियाँ। ऑड, हियर, ओकेजनल, नॉट रेगुलर, कभी कभी। मटेरियल, थिंग्स, सामान, चीज़ें। फार्म्स, हियर फार्म हाउस, एस्पेशली, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से। प्रॉफिटेबल, अर्निंग प्रॉफिट्स, फ़ायदेमंद। रिसॉर्ट टू, फोर्स टू, बाध्य होना। पेटी, स्मॉल, छोटी। थीवेरी, थेफ्ट, चोरी। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू सर्वाइव और लिव, जिंदा रहने के लिए। रैग्स, ओल्ड टोन क्लोथ्स, फटे पुराने चिथड़े कपड़े। संकन, हॉलो एंड फॉलिंग इनवर्ड, धसे हुए। ग्लीम्ड, शोन, चमकती थी। मोनोटोनस, हियर डल, नीरस। वैगाबॉन्ड, वैग्रेंट, वॉन्डरर, आवारा या धुमक्कड़। प्लॉड्स, ट्रजेस, वॉक स्लोली विथ हेवी स्टेप्स, पाँव घसीटता है, कठिनाई के साथ भारी कदमों में चलता है। मेडिटेशंस, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, मनन, चिंतन। एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग, मनोरंजक। स्ट्रक, सडनली केम, अचानक आना। अबाउट हिम, अराउंड हिम, चारों ओर। एग्जिस्टेड, रिमेन्ड, मौजूदा रहा। पर्पस, एम, उद्देश्य। सेट बेट्स, टू प्लेस फूड ऑन अ हुक एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू कैच एन एनिमल, चारा लगाना जानवर फंसाने के लिए जाल में। रिचेस, वेल्थ, धन संपत्ति। शेल्टर, रेफ्यूज, शरण। पोर्क, मीट फ्रॉम अ पिग, सुअर का गोश्त। टेम्प्टेड, ल्यूर्ड, एंटाइज्ड, प्रलोभित होना। अनवांटेड, अनअकस्टम्ड, अनभ्यस्त। इल, हियर बैड, एविल, बुरा। चेरिश्ड, हेल्ड डियर, क्लंग टू, हृदय में बनाए रखना, संजोए रखना। पास टाइम, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन।
dreary, dull, नीरस, ploddings, wanderings, घूमना, snare, trap, फंदा, bait, food as lure, चारा, trudging, wandering, भटकते हुए, sour, here, unpleasant, अप्रिय, immediately, at one, एकदम, porridge, oatmeal, दलिया, supper, the last meal of the day, दिन का आखिरी खाना, carved off, कट, काटी, slice, पीस, फाक, कतला, पैक, पैकेट, गड्डी, मजोलिस, अ गेम ऑफ कार्ड्स प्लेड इन स्वीडन, स्वीडन में खेला जाने वाला ताशों का एक खेल. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for a creamery every day. And last month he had received all of 30 kronor in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, looked down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. The next day both men got up in a good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in the bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. अनुवाद. वृद्ध व्यक्ति अपने स्वयं के भेद की बातों में उतना ही उदार था जितना वह दलिये और तंबाकू में था. मेहमान को तुरंत वह बता दिया कि उसके संपन्न वाले दिनों में उसका मेजबान राम्सजो आयरन वर्क्स वाली जगह में एक छोटा निजी फार्म रखा करता था और वह उस ज़मीन पर काम करता था. अब जबकि वह दिन भर की मेहनत का काम करने के योग्य नहीं रहा, तो यह उसकी गाय थी जिससे उसका गुजारा चलता था. हाँ, वह एक विलक्षण गाय थी. वह रोज़ मक्खन निकालने वाले कारखाने में दूध दे सकती थी और पिछले महीने ही उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनोर स्वीडन की मुद्रा मिले थे. अजनबी को निश्चय ही विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अपनी जगह से उठा तथा खिड़की की तरफ गया. वहाँ से चमड़े की एक छोटी थैली नीचे उतारी जो उसी खिड़की के फ्रेम में एक कील के साथ लटकी हुई थी, और उसमें से 10-10 क्रोनोर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले. उसे उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने पकड़ कर दिखाया, जानबूझकर सिर हिलाते हुए, और फिर उन्हें थैली में ठूस दिया. दूसरे दिन दोनों व्यक्ति ठीक वक्त रहते उठ गए. छोटे फार्म वाला व्यक्ति अपनी गाय को दूहने की जल्दी में था, और दूसरे व्यक्ति ने संभवतः यह सोचा कि उसे बिस्तर में नहीं पड़े रहना चाहिए. जबकि घर का मालिक उठ खड़ा हुआ. वे एक ही समय में झोपड़ी में से निकल गए. छोटे बाड़े वाले ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल लिया. मूसदानी वाले व्यक्ति ने विदा कहा और धन्यवाद भी दिया, और इसके तुरंत बाद ही दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए.
लेकिन आधे घंटे के बाद वह मूसदानी की फेरी लगाने वाला व्यक्ति फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन वह अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह केवल खिड़की तक गया, एक तख्ते को तोड़ा, अपने हाथ अंदर की ओर बढ़ाया और 30 क्रोनर वाली थैली को पकड़ लिया। उसने पैसे निकाले और अपनी जेब में भर लिया। फिर उसने चमड़े वाली थैली को बहुत सावधानीपूर्वक उसकी जगह पर लटका दिया और अपने रास्ते चला गया। ग्लोसरी: जेनरस, काइंड, लार्ज हार्टेड, उदार दिल, दयालु। कॉन्फिडेंसेस: हियर, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस और टॉकिंग इवन सीक्रेट थिंग्स, विश्वास में लेना। प्रॉस्पेरिटी: हियर, ड्यूरिंग प्रॉस्परस डेज, समृद्धशाली समय में। क्रॉफ्टर: वन हु रेंट्स अ फार्म, ज़मीन किराए पर देने वाला, बेड़े का मालिक। क्रीमेरी: अ प्लेस वेयर मिल्क एंड क्रीम आर मेड इनटू बटर एंड चीज़, जहाँ दूध क्रीम से मक्खन और पनीर बनाए जाते हैं। क्रोनर: द यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन, स्वीडन की करेंसी मुद्रा। इनक्रेडलस: इनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। पाउच: स्मॉल बैग, थैली। व्रिंकल्ड: हियर, नॉट स्मूथ, मुड़े तुड़े। बिल्स: बैंक नोट्स, बैंक नोट। नॉडिंग, शेकिंग द हेड, सिर हिलाना। स्टफ्ड, फिल्ड टाइटली, ठूस दिए। इन गुड सीजन, हियर, हैप्पीली, मस्ती में, प्रसन्नतापूर्वक। प्रोबेबली, परहैप्स, शायद। गॉटन अप, वोकन अप, जागा हुआ था। पेडलर, वेंडर, फेरी वाला। स्मैश्ड, ब्रोक इनटू पीसेस, चकनाचूर किया। पेन, हियर, विंडो पेन और ग्लास, खिड़की का शीशा। स्टक, हियर, थ्रस्ट इन, डाला, ठूसा। गॉट होल्ड, कॉट होल्ड, पकड़ा। थ्रस्ट, पुश फोर्सफुली, धकेला। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. The Ramsjo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अनुवाद: जब वह अपनी जेब में पैसे लिए हुए जा रहा था,
तो उसे अपनी चतुराई पर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। निश्चित उसे महसूस हुआ कि उसे पहली तो बड़ी आम सड़क पर चलते रहने का साहस नहीं करना चाहिए, बल्कि सड़क से दूर हो जाना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। पहले घंटों के बीच उसे इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। दिन में बाद के समय यह काम थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि यह एक बड़ा और उलझाने वाला जंगल था जिसमें वह घुस गया था। वह इस बात को निश्चित करने की कोशिश किया कि एक ही दिशा में चलता रहे, किंतु रास्ते घूम घूम कर बहुत विचित्र ढंग से आगे पीछे होते जा रहे थे। वह जंगल के अंत तक पहुँचे बिना ही चलता रहा और अंत में उसे महसूस हुआ कि वह जंगल के उसी भाग में चक्कर काटे जा रहा था। अचानक उसे संसार के बारे में और चूहेदानियों के बारे में उसका विचार फिर से याद आने लगा। अब उसकी अपनी बारी थी। वह एक चारा के लालच में मूर्खतापूर्ण ढंग से आ गया था और पकड़ा गया। अपने तनों और डालियों सहित पूरा जंगल अपनी झाड़ियों और टूटे हुए तनों सहित उसके आसपास एक अभेद जाल की भांति घिर रहा था, जिसे वह कभी नहीं बच सकता था। दिसंबर महीने के अंतिम दिन थे। जंगल में अंधेरा छाने लगा था। इससे खतरा और बढ़ गया और इसने उसकी निराशा और उदासी को बढ़ा दिया। अंत में उसे कोई चारा नहीं दिखाई दिया और वह ज़मीन पर ही ढेर हो गया, क्योंकि थकान के कारण उसकी जान निकली जा रही थी। वह सोचते हुए कि उसके अंतिम क्षण आ गए हैं, लेकिन जो ही उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक तेज थपथपाहट की आवाज़ थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह आवाज़ किसी की थी। वे किसी लोहे के मिल में किसी हथौड़े के पड़ने की आवाज़ें हैं। उसने सोचा, वहाँ आसपास ज़रूर कोई होगा। उसने अपनी ताकत दिखाई, उठा और लड़खड़ाता हुआ उस आवाज़ वाली दिशा की तरफ चल दिया। राम्सजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी समय पूर्व ऐसा नहीं होता था। उस समय यह एक विशाल कारखाना था जिसमें लोहा पिघलाने की भट्टी थी, रोलिंग मिल थी और एक लोहा गर्म करने की भट्टी थी। गर्मी के दिनों में भारी लदी हुई किश्तियों की लंबी लाइनें, चपटे पेंदे वाली नावों की पंक्तियाँ नहर में आती जाती रहती थी, जो शहर के भीतर तक की एक विशाल झील तक जाती थी। और शीत के दिनों में मिल के नज़दीक वाली सड़कें पर उसे पूरे कोयले की धूल से काली थी और कच्चे कोयले के बड़े बड़े क्रेटों यानी टोकरों में से रिस रिस कर गिर जाती थी। ग्लोसरी: क्वाइट, अ लॉट, काफ़ी। स्मार्टनेस: हियर, क्लेवरनेस, चतुराई। पब्लिक हाईवे: मेन रोड, मुख्य सड़क। कॉज्ड: प्रोड्यूस्ड, पैदा की। गॉटन इनटू: फॉलन इनटू, ट्रैप्ड। डेफिनेट: सर्टन, निश्चित। ट्विस्टेड: कर्व्ड, घूम मुड़ जाता था। रिकॉल्ड: रिमेंबर्ड, याद किए। फूल्ड: हियर, डिसीव्ड, धोखा खाने दिया। ट्रंक्स, स्टेम्स, तने। थिकेट्स: अ ग्रुप ऑफ बशेस ग्रोइंग क्लोजली, झुरमुट, झाड़ियाँ। लॉग्स: हियर, बिग पीसेस ऑफ वुड, लक्कड़। इम्पेनिट्रेबल: दैट कांट बी क्रॉस्ड, अभेद्य। डिसेंडिंग: कमिंग डाउन, नीचे आती हुई। ग्लूम: सैडनेस, उदासी। डिस्पेयर: डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। सैंक डाउन, फेल डाउन, धम से गिर गया। थम्पिंग: थडिंग साउंड, थप थप की आवाज़। हैमर स्ट्रोक्स: साउंड ऑफ हैमर स्ट्राइकिंग, हथेलियों के चोटों की आवाज़। समन्ड: हियर, गैदर्ड, बटोरी, इकट्ठा की। स्टैगर्ड: वॉक्ड अनस्टेडीली, लड़खड़ाता चला। स्मेल्टर: हियर, मेल्टिंग ऑफ आयरन, वन हु मेल्ट्स आयरन, लोहा पिघलाने वाला। रोलिंग मिल:
a factory that produces flat sheets of metal. वह मिल जहाँ धातु की चादर बनती हो. Forge, furnace, hearth, भट्टी. Barges, boats, नौकाएं. Scows, flat bottomed boats, चपटे तल वाली नौकाएं. Slid, sailing down, तैरती हुई. Sifted, separated, छनता हुआ. Charcoal, coal made from wood, काठ कोयला कच्चे कोयले. Crates, baskets, टोकरे. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments. Dripping with perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellow groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come to warm themselves in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything. Either he had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. अनुवाद. क्रिसमस से कुछ समय पूर्व एक बड़ी अंधेरी शाम के दौरान मुख्य लोहार और उसका सहायक आग के कूड़ के पास एक अंधेरी जगह पर बैठे थे और निहाई पर डालने के लिए कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे. थोड़ी थोड़ी देर बाद उनमें से एक लंबी लोहे की सलाख लिए हुए दहकते हुए ढेर को हिलाने के लिए खड़ा होता था, फिर कुछ क्षण में लौट आता था, पसीने से तरबतर हो जाता था. फिर जैसा कि उसे आदत था, उसने एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के एक जोड़े के अतिरिक्त और कुछ पहना नहीं होता था. भट्टी में हर समय वहाँ पर कई आवाज़ें सुनने को मिलती थी. बड़ी बड़ी ढाकनी के कहराने की आवाज़ और जलते हुए कोयले के टूटने की आवाज़ आती थी. आग जलाने वाला लड़का भट्टी के मुंह में कच्चा कोयला बेलने की मदद से फेंकता था और इससे बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी. बाहर की तरफ झरने के गरजने की आवाज़ आती थी और तेज़ उत्तरी हवाएं ईंट की टाइलों वाली छत के ऊपर वर्षा के थपेड़े ज़ोर ज़ोर से लगाती थी. शायद इन सभी शोर से लोहार को इस बात का पता ही नहीं चला कि एक आदमी दरवाज़ा खोलकर भट्टी के अंदर बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया था. निश्चित ही यह कोई साधारण बात नहीं था कि गरीब बेघर आदमी जिसके पास रात बिताने के लिए कोई बेहतर शरण नहीं होता था, वे भट्टी की तरफ आकर्षित होकर चले आते थे. उस रोशनी की चमक के कारण जो धुएं से काले हुए शीशों में से बच निकलती थी और वे आग के सामने स्वयं को गर्म करने के लिए वहां अंदर आ जाते थे. लोहारों ने उसे बिना पूछे अंदर आने वाले की तरफ केवल गैस रस्सी ढंग से तथा असावधानी से देखा.
वह देखने में वैसा ही लगता था जैसे कि दूसरे जैसे लोग लगते थे। लंबी दाढ़ी वाला, गंदा फटे चिथड़े पहने हुए, और उसका छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा सा लटकता था। वह वहाँ रुकने की इजाज़त मांगा और मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर उसके स्वागत में ज़ोरदार हाँ बोल दिया। उस घूमने वाले आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। वह वहाँ बातें करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को गर्म करने और सोने के लिए आया था। ग्लोसरी, मास्टर, एक्सपर्ट, माहिर। पिग आयन, रॉ आयन, कच्चा लोहा। एनविल, an iron block on which a blacksmith hammers things. Nihai, Sandan, Ahran. Stir, here, move a little. Hilana, kuredna. Glowing, shining, chamakta hua. Mass, a lump, pinned. Bar, here, iron rod, chadi. Dripping, wetting, falling in drops. Tapakta hua. Perspiration, sweat, pasina. Bellows, pipes that blow air. Dhokni, groan, here, sound of bellowing, dhokne की आवाज़. Cracked, spattering, sound of charcoal, चटकने की आवाज़. Shoveled, put through shovels, कुदालो या फावड़ों से भरना. Maw, like a big mouth or stomach, उदर पेट. Great deal, lot of, काफ़ी. क्लैटर, अ लाउड नॉइज, खड़खड़ाने की आवाज़. रोड, मेड अ रोरिंग साउंड, थंडर्ड, दहाड़ने की आवाज़. विप्ड, शार्प ब्लोइंग और थ्रस्टिंग, आघात करती हुई, फटकारती हुई. ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, के कारण. अनयूजुअल, अनकॉमन, असाधारण. एस्केप्ड, वेंट आउट, बाहर निकल जाती थी. सूटी पेन्स, हियर, ग्लास पेन्स कवर्ड विथ स्मोकी डस्ट, कालिक लगे हुए खिड़कियों के शीशे. ग्लांस्ड, लुक्ड, नज़र उठाई, देखा. कैजुअली, नॉट इंटेंटली, सरसरी नज़र से. आकस्मिक, इनडिफरेंटली, विदाउट केयरिंग, ध्यान न देते हुए. इंट्रूडर, वन हु एंटर्ड विदाउट परमिशन. घुसपैठिया. रैग्ड, हियर, torn and old clothes, फटे जीर्ण कपड़े. बंच, अ क्लस्टर, गुच्छा. डैंगलिंग, हैंगिंग डाउन, लटकता हुआ. हॉटी, अरोगंट, घमंडी. कंसेंट, एग्रीमेंट, स्वीकृति. ट्रैम, वॉन्डर्ड, आवारा. दिस track ends here. Remaining part of this chapter will be continued on the next track. Track number 3J. In this track, recording has been done from page number 173 to page number 180. It covers a recording of section C, literature, textual comprehension, A, prose section, remaining part of chapter 4. Page number 173. The chapter continues. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent ironmaster whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch, had to get a better view of his face. But of course it is you, Nils Olof, he said. How you do look! The man with the rat traps had never before seen the ironmaster at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance,
he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have done downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the ironmaster. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course, you will come home with me. अनुवाद: उन दिनों राम्सजो आयन मिल का मालिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोहा मालिक यानी आयन मास्टर हुआ करता था, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि बाज़ार में अच्छा लोहा भेजा जाए। वह दिन रात दोनों पर ध्यान रखता था कि काम जितना संभव हो सके अच्छे ढंग से हो। और इसी बीच रात के समय वह भट्टी में आ गया। स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहली यह बात देखा कि वह फटीचर हाल वाला व्यक्ति जो आराम से भट्टी के इतने नज़दीक था, उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। आयन मास्टर ने लोहारों वाले उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अजनबी की तरफ देखने की मुश्किल से कोई इच्छा की थी। वह उसके और नज़दीक गया, ध्यान से उसको देखा, फिर उसको ठीक से देखने के लिए उसकी टोपी को खींचकर हटा दिया। निस्संदेह यह तो तुम हो, निल्स ओलोफ, उसने कहा। तुम देखने में कैसे लग रहे हो? चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने रामसोजी के आयन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात आया कि यदि वह सभ्य व्यक्ति उसे एक पुराना परिचित व्यक्ति मानने लगे तो शायद उसे कुछ क्रोनर भेंट कर दे। इसलिए वह एकदम से उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था। हाँ, ईश्वर जानता है मेरी हालत खराब होती गई है, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, आयन मास्टर ने कहा। वही गलती थी। यदि मैं उस समय भी नौकरी में रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। ग्लोसरी: प्रोमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, फेमस, प्रसिद्ध। स्निप आउट, शेप आउट, तराशना। रैग मफिन, वेयरिंग रैग्स, गुदड़िया। ईज्ड हिज वे, मेड हिज वे इजीली, आसानी से रास्ता बना लिया। डीन्ड, बॉदर, परवाह की, कृपा की। टोर ऑफ, हियर, एक्सपोज्ड, टर्न्ड अप, उघाड़ा, ऊपर किया। स्लाउच, हियर, नॉट स्ट्रेट, बेंडिंग, झुका हुआ। एक्वेंटेंस, वेल नोन, फैमिलियर विथ, जाना पहचाना, परिचित। अनडिसीव, नॉट टू डिसीव, धोखा न देना। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and make us help the Christmas food disappear a little faster. But the stranger said no and again no, and the ironmaster saw that he must give in. It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you tonight, Stegenstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. अनुवाद:
जमींदार की हवेली में जाना और एक पुराने रेजिमेंटल साथी के समान मालिक से स्वागत प्राप्त करना, यह बात सचमुच उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, उसने कहा, चिंतित अंदाज में कहा। वह 30 क्रोनेट के बारे में सोच रहा था। जमींदार के घर जाना मतलब स्वयं को अपनी इच्छा से शेर की गुफा में फेंकना। वह सिर्फ यहाँ भट्टी में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो सके चुपके से वह चला जाना चाहता था। आयन मास्टर ने मान लिया कि वह अपने घटिया कपड़ों के कारण लज्जा अनुभव कर रहा था। कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना अच्छा घर है कि तुम वहाँ स्वयं को नहीं ले जा सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन लिए होंगे। मेरे बेटे विदेश गए हैं और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे सिवाय वहाँ पर कोई नहीं है। हम ऐसे कह रहे थे कि क्रिसमस पर हमारे पास कोई साथ देने के लिए नहीं था। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो। लेकिन अजनबी ने कहा नहीं और फिर नहीं कहा, और आयन मास्टर ने देखा कि उसे हार माननी होगी। ऐसा लगता है स्टजनस्ट्रॉम की कैप्टन वोन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ ही ठहरना उचित समझता है, उसने मुख्य लोहार से कहा और उल्टे पांव चला गया। किंतु जब वह वहाँ से गया तब अपने आप से ही हंस दिया तथा लोहार, जो उसे जानता था, बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया कि उसने अभी अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। ग्लोसरी, डाउन हिल, हियर, फॉल इन फॉर्च्यून, किस्मत में गिरावट। मैनोर, फार्म हाउस, जमींदारी भवन। रेजिमेंटल, ऑफ द सेम रेजिमेंट, उसी फौजी का टुकड़ा का। कॉमरेड, कलीग, साथी। अलार्म्ड, हियर, फ्राइटन्ड, डरा हुआ। वॉलंटरीली, हियर, विलिंगली, स्वेच्छा से। डेन, केव, गुफा। स्नीक अवे, रन और गो अवे साइलेंटली, चुपके से खिसक जाना। इनकॉन्स्पिशियसली, हियर, विदाउट बिंग नोटिस्ड, बिना नोटिस में आए। अज्यूम्ड, हियर, सपोज्ड, अंदाज़ा लगाया। एम्बरेस्ड, हियर, फीलिंग अनईजी, in an awkward situation. Miserable, here, pitiable, दयनीय। Abroad, in some foreign country, विदेश में। Disappear, here, consumed, खत्म करना। Faster, quickly, जल्दी से। Give in, surrender, हार मानना। Preferred, showed priority, प्राथमिकता दी है। Turned on his heel, ran away, भाग गया। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. "My name is Edla Wilmanson," said the young girl. "My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time." She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he had stolen something or else he had escaped from jail, she thought, and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." She said this in such a friendly manner that the
rat trapper peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. अनुवाद: आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा जब उन्होंने भट्टी से बाहर की तरफ एक बग्गी के पहियों की आवाज़ सुनी और एक नया मेहमान अंदर आ गया। लेकिन इस बार आयन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था, स्पष्ट रूप से यह आशा करते हुए कि स्वयं उसकी अपेक्षा वह उसे मनाने के लिए बेहतर सामर्थ्य रखती होगी। वह अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे एक सेवक था जो अपनी बाह के ऊपर एक बड़ा फर कोट पकड़े हुए था। वह दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, लेकिन विनम्र और लज्जाशील लग रही थी। भट्टी के अंदर हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले शाम के समय थी। मुख्य लोहार और उसका सहायक अब भी अपने बेंच के ऊपर बैठे हुए थे और भट्टी में लोहा और कच्चा कोयला अभी भी दहक रहा था। अजनबी स्वयं फर्श पर लेटा था और अपने सिर के नीचे लोहे का एक टुकड़ा रखा था और अपनी टोपी को अपनी आँखों के ऊपर खींच कर रखा था। जो ही युवती की नज़र उस पर पड़ी, वह उससे नज़दीक गई और उसकी टोपी उठा दी। उस आदमी की आदत एक आँख खोलकर सोने की थी। अचानक उछलकर वह खड़ा हो गया और बहुत डरा हुआ लग रहा था। मेरा नाम एडल विल्मेंसन है, युवती ने कहा। मेरे पिता घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि आप आज रात यहाँ भट्टी में सोना चाहते थे। फिर मैंने उनसे अनुमति मांगी कि यहाँ आकर आपको अपने साथ घर ले जाऊँ। कप्तान साहब, मुझे बहुत दुख है कि आपका इतना ख़राब समय चल रहा है। इस लड़की ने उसकी तरफ भारी आँखों से दयालुता की भाव से देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ लग रहा था। या तो उसने कोई चीज़ चुरा ली है या फिर जेल से भागा है, उसने सोचा और फिर जल्दी से बोली, कृपया आप इस बात का विश्वास कीजिए कि आपको वहाँ से जाने की इतनी आज़ादी होगी जितनी वहाँ आने की। कृपया हमारे साथ क्रिसमस के अवसर पर रुकिएगा। उसने यह बात इतनी विनम्रतापूर्वक ढंग से कही कि चूहेदानी की फेरी लगाने वाले व्यक्ति को उस पर निश्चय भरोसा हो गया। मैं यह बात कभी सोच नहीं सकता था, देवी जी, कि आप मेरे लिए स्वयं इतना कष्ट उठाएंगी। उसने कहा, मैं अभी आपके साथ चलूँगा। ग्लोसरी: अपेरेंटली, आउटवर्डली, बाहरी रूप से। परसुएशन, ब्रिंगिंग राउंड, मनाना। वैलेट, अटेंडेंट, सर्वेंट। टहलवा, नौकर। प्रेटी, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, आकर्षक, सुंदर। मॉडेस्ट, जेंटल, विनम्र। अप्रेंटाइज, ट्रेनी और हेल्पर, सहायक। ग्लोड, ब्रंट विथ अ शाइन, सुलगते हुए। स्ट्रेच्ड, स्प्रेड आउट, फैल गया। लिफ्टेड, पिक्ड अप, उठाया। एविडेंटली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। एब्रप्टली, सडनली, अचानक। फ्राइटन्ड, स्केर्ड, डरा हुआ था। कंपैशनेटली, सिंपैथेटिकली, सहानुभूतिपूर्ण ढंग से। नोटिस्ड, टुक नोटिस ऑफ, ध्यान किया। बॉदर, वरी, परेशान होना। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different.
Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of cloth which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him from an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. Well, said the ironmaster, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. अनुवाद। उसने वह फर वाला कोट स्वीकार कर लिया जिसे सेवक ने उससे विनम्रता पूर्वक दिया, उसे अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर डाल दिया और युवती के पीछे पीछे बिना लोहारों की तरफ देखे बाहर बग्गी की तरफ चल दिया। लेकिन जब वह बग्गी में सवार होकर जमींदार के घर की तरफ जा रहा था तो उसे बुरा पूर्वाभास होने लगा। उसने सोचा, अरे मेरी बदकिस्मती, मैं उस आदमी से पैसे क्यों लिया। अब मैं पिंजरे में बैठा हूँ और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। दूसरे दिन क्रिसमस था और जब आयन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो वह संभवतया संतोषपूर्वक उसी पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में सोच रहा था जिससे वह इतने अप्रत्याशित रूप से मिला था। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ी चर्बी आ जाए, उसने अपनी बेटी से कहा जो टेबल को ठीक करने में व्यस्त थी। और फिर हमें यह देखना होगा कि प्रदेश का चक्कर काटते हुए चूहेदानी बेचने की बजाय उसे करने का कोई दूसरा काम मिल जाए। बड़ी विचित्र बात है कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। लड़की ने कहा, कल रात मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा उसके विषय में जिससे पता चले कि वह कभी भी एक शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। पिता ने कहा, मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जैसे ही वह साफ सुथरा हो जाएगा और कपड़ा पहन लेगा तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। कल रात वह स्वाभाविक रूप से घबराया हुआ था। जब वह आवारागर्दी वाले वस्त्रों का त्याग कर देगा तब वह आवारागर्दी वाले तौर तरीके उसका साथ छोड़ देंगे। जैसे कि उसने यह शब्द कहे, दरवाज़ा खुला और अजनबी ने अंदर प्रवेश किया। हाँ, वह अब बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। नौकर ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसकी दाढ़ी बना दी थी। इसके अलावा उसने देखने में अच्छे कपड़ों का एक जोड़ा पहना हुआ था जो आयरन मास्टर का था। वह एक सफ़ेद कमीज़ पहना था और स्टार्च लगे कॉलर डाला हुआ था और नए बिना टूटे हुए जूते पहना था। यद्यपि उसका मेहमान अब इतना अच्छे से सजा हुआ था, फिर भी आयरन मास्टर प्रसन्न दिखाई नहीं दिया। वह त्योरी चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। वह समझना आसान था कि जब उसने भट्टी के धुंधले प्रकाश में उस अजनबी व्यक्ति को देखा था तो उससे शायद कोई गलती हो गई थी, लेकिन जब वह दिन की रोशनी में वहाँ खड़ा था तो उसे एक पुराना परिचित व्यक्ति समझने की गलती कर बैठना एक असंभव बात थी। इसका क्या अर्थ है? उसने चिल्लाते हुए कहा। अजनबी ने स्वयं की असलियत छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। वह तुरंत समझ गया कि इस वैभव का अंत हो चुका था। श्रीमान, यह मेरी गलती नहीं है, उसने कहा। मैं एक गरीब व्यापारी होने के अतिरिक्त अन्य कोई नाटक नहीं किया था और मैं आपको समझाया था
तथा गुजारिश की थी कि मुझे वहां भट्टी में रुकने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन कोई हानि नहीं हुई है। मैं अपने फटे कपड़े फिर से पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है, आयरन मास्टर ने थोड़ा झिझकते हुए स्वर में कहा। यह पूरी ईमानदारी वाली बात भी नहीं थी। तुम्हें ऐसा स्वीकार करना होगा और मुझे हैरानी नहीं होगी यदि शेरिफ इस विषय में कुछ कहना चाहेगा। ग्लोसरी बो सैल्यूट बाय बेंडिंग लो, झुककर प्रणाम करना। ग्रांटिंग ऑफरिंग देना। एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड हैरान। ग्लांस कैजुअल लुक झलक। फोरबोर्डिंग्स हियर कमिंग इवेंट्स आगे घटने वाली चीज़ें। हैड रन अक्रॉस हैड कम अक्रॉस अचानक मिल गया था। फ्लैश मीट मांस। क्वियर स्ट्रेंज विचित्र अजीब। फॉल अवे गो अवे दूर चले जाएंगे खत्म हो जाएंगे। स्टार्च्ड वॉश्ड एंड स्टार्च्ड धुला कलफ लगा हुआ। ग्रूम्ड हियर वेल ड्रेस्ड एंड मेड अप तैयार श्रृंगार किया। पक्कड़ व्रिंकल्ड शिकन वाला। अनसर्टन हियर नॉट क्लियर अस्पष्ट। अटेम्प्ट ट्रायल एफोर्ट प्रयत्न। डिसिम्युलेट हाइड छिपना। स्प्लेंडर ग्रैंडियर वैभव। प्रिटेंडेड टू गिव अ फॉल्स शो बहाना करना। प्लीडेड रिक्वेस्टेड याचना की। शेरिफ एन ऑफिशियल फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर शासनाधिकारी। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pokes set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. The ironmaster began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I won't want him to go. And with that she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. The ironmaster mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we had asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. You do preach worse than a person, said the ironmaster. I only hope you won't have to regret this. अनुवाद। उस घूमंतु व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को टेबल पर पटका। अब मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बात ऐसी है, उसने कहा, यह पूरा संसार एक बड़े चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सभी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको प्राप्त हुई है केवल मोटे पनीर के टुकड़ों और सुअर मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है, जो एक गरीब व्यक्ति को मुसीबत में घसीटने के लिए सजाए गए हैं। और शेरिफ अब आ जाता है और मुझे इस कारण से जेल में डाल देता है, तो आपको मिस्टर आयरन मास्टर अवश्य याद रखना चाहिए कि एक दिन आ सकता है जब आप स्वयं सुअर मांस का एक टुकड़ा लेना चाहेंगे और फिर आप जाल में फंस जाएंगे। आयरन मास्टर हंसने लग गया।
मेरे अच्छे मित्र, यह बात इतने बुरे ढंग से नहीं कही गई है। क्रिसमस पर हमें शेरिफ को एक तरफ रख देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाज़ा खोला, लड़की बोल उठी, मैं समझती हूँ कि उसे आज के दिन हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। और इतना कहते हुए उसने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। यह तुम क्या पागलपन कर रही हो, पिता ने कहा। बेटी वहाँ घबराई हुई खड़ी थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। उस दिन सुबह उसे कितनी प्रसन्नता महसूस हो रही थी जब वह सोच रही थी कि वह बेचारे भूखे गरीब व्यक्ति के लिए चीज़ें कितनी घर के जैसे और क्रिसमस के अनुसार तैयार कर देगी। वह इस विचार को तुरंत दिमाग से नहीं निकाल सकती थी और यही कारण था कि उसने उस घुमंत आदमी का पक्ष लेकर मध्यस्थता की थी। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवती ने कहा। यह वर्ष भर चलता रहता है और पूरे देश में संभवतया एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ उसका स्वागत हो और वहाँ घर के जैसा महसूस कर सके। वह जहाँ कहाँ भी जाता है उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। उसे हमेशा भय लगा रहता है, उसे बंदी बना लिया जाएगा और उससे पूछताछ होने लगेगी। मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ हमारे साथ शांति का एक दिन बिताए, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। आयन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में ही कुछ अस्पष्ट आवाज़ में कहा। वह उसका विरोध करने में स्वयं को जुटा न सका। निस्संदेह यह सब एक गलती थी, वह बोलती गई। लेकिन कुछ भी हो, मैं नहीं समझती कि हमें एक मनुष्य को यहाँ से भगा देना चाहिए जिसे हमने आने को कहा है और जिसके साथ हमने क्रिसमस की खुशियाँ बांटने का वादा किया है। तुम एक ईसाई पुरोहित से भी घटिया उपदेश देती हो, आयन मास्टर ने कहा। मैं केवल इतना आशा करता हूँ कि तुम्हें बाद में इसका पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। ग्लोसरी स्ट्रक, गेव अ ब्लो, पीटा, फिस्ट, क्लोज्ड पाम, मुट्ठी, रिंस, थिक आउटर स्किन्स, छिलके, छाल, ऑट, शुड, चाहिए, क्रिसमसी, द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की रंगीनियाँ, व्रेच, अनफॉर्चुनेट, अभागा, इंटरसीडेड, मेडिएटेड, मध्यस्थता की थी, चेस्ड अवे, ड्रिवन अवे, भगा दिया जाता है, क्रॉस एग्जामाइंड, क्वेश्चनिंग, पूछताछ, मम्बल्ड, मरमर्ड, बुड़बुड़ाया, चीयर, जॉय, खुशी, प्रीच, sermonize, प्रवचन देती हो, पार्सन, हियर, प्रीस्ट, पादरी। The young girl took the stranger by the hand and led him up the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon, when they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into a dining room and eat the Christmas fish and porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the younger girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place
where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. अनुवाद: युवती ने अजनबी को पकड़ा और उसे मेज की तरफ ले गई। अब बैठ जाओ और भोजन करो, उसने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने जिद छोड़ दी थी। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह केवल बैठ गया और खाने में स्वयं की मदद करने लगा। कुछ देर वह युवती की तरफ देखता था जिसने उसके पक्ष में मध्यस्थता की थी। उसने ऐसा क्यों किया था? इसके पीछे कैसा सनकी विचार हो सकता था? इसके बाद राम्सजो ने क्रिसमस उसी प्रकार गुजर गया जैसे हमेशा गुजरता था। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। पूरा तीसरा प्रहर वह मेहमानों वाले एक कमरे में सोफे पर पड़ा रहा और लगातार सोता रहा। दोपहर के समय उन्होंने उसे जगाया ताकि वह बढ़िया क्रिसमस भोज में से अपना हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद वह सो गया। ऐसा लगता था जैसे अनेक वर्षों से वह इतनी शांति और सुरक्षा से नहीं सो पाया था जितना कि यहाँ राम्सजो में सो रहा था। शाम को जब क्रिसमस पेड़ को रोशन किया गया तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया। फिर वह कुछ देर तक बैठक कक्ष में खड़ा रहा, आंखें झपकता हुआ मानो मोमबत्ती की रोशनी से उसे तकलीफ पहुंच रही हो, तथा उसके बाद वह फिर से गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। तब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस वाली मछली और दलिया खाना पड़ा। जैसे ही वे मेज़ पर से उठे, वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक करके गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। लेकिन जब वह उस युवती के पास आया तो उस युवती ने यह बात उसे समझा दी कि उसके पिता की इच्छा थी कि वह सूट जो वह पहने हुए था वह उसे एक क्रिसमस उपहार होगा। उसे वह वापस करने की ज़रूरत नहीं थी, और यदि वह अगला क्रिसमस त्यौहार ऐसी जगह पर बिताना चाहता हो जहां पर आराम से समय बिता सके तथा यह निश्चित रखे कि उस पर कोई बुराई नहीं आएगी, तो उसका वहां दोबारा स्वागत होगा। इस पर चूहेदानी वाली व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह असीम हैरानी से युवती की ओर देखता रहा। ग्लोसरी: क्रेजी, मैड, पागल या सनकी। वन स्ट्रेच, ओनली फॉर वन टाइम, एक ही बार। फेयर, हियर, फेस्टिविटी, उत्सव। क्वाइटली, हियर, पीसफुली, शांति से। ब्लिंकिंग, विंकिंग रैपिडली, पलक मारते हुए, आंखें पिचकाते हुए। हर्ट, ट्रबल, परेशान करती थी। अराउज्ड, वोकन अप, जगा दिया गया। इंटेंशन, हियर, डिज़ायर, इच्छा। स्टेयर, लुक्ड इंटेंटली, घूर के देखना। बाउंडलेस, एंडलेस, असीमित। अमेजमेंट, सरप्राइज, हैरानी। The next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes.
But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. Honored and noble Miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन स्टेहल। अनुवाद। दूसरे दिन सुबह आयन मास्टर और उसकी बेटी सुबह की क्रिसमस पूजा पर पहुंचने के लिए ठीक समय पर उठ गए थे। उनका मेहमान अभी भी सोया था और उन्होंने उसकी नींद को भंग नहीं किया। लगभग 10 बजे जब वे गाड़ी में सवार होकर चर्च से आ रहे थे तो युवती निराशा से अपने सिर नीचे झुकाए बैठी थी। चर्च में उसे पता चला था कि आयन वर्क्स का एक पुराना छोटा ज़मींदार एक आदमी के द्वारा ठगा गया था जो चूहेदानी बेचते हुए घूमा करता था। हाँ, वह एक अच्छा आदमी था जिसे हमने घर के अंदर प्रवेश करवा लिया था, उसके पिता ने कहा। मुझे शंका है कि पता नहीं अब तक अलमारी में कितने चम्मच बचे होंगे। बग्गी मुश्किल से ही आगे वाले दरवाजे पर रुकी होगी कि आयन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी अभी भी वहाँ पर था। उसने यह भी बता दिया कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी एक चोर था। नौकर ने जवाब में कहा कि वह आदमी जा चुका था और वह अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर नहीं गया था। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ा जिसे मिल विल्मेंसन ने कृपापूर्वक एक क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार किया था। युवती ने पैकेट को खोला। पैकेट बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ था, लेकिन उसके अंदर का सामान दिखाई पड़ गया। उसकी एक छोटी सी चीख निकल पड़ी। उसमें एक छोटा सा चूहेदानी मिला और उसके अंदर मुड़े हुए 10-10 के 3 क्रोनर नोट थे, लेकिन यह सब पूरा नहीं था। इस चूहेदानी में एक पत्र भी था जो बड़े बड़े और आड़े तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ था। सम्मानीय और सभ्य मिस, क्योंकि आप पूरे दिन भर मेरे प्रति इतनी शालीन रही, मानो मैं कोई कप्तान था, मैं भी बदले में आपके प्रति श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। मानो मैं सचमुच में एक कप्तान ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा परेशानी में पड़े, किंतु आप ये पैसे सड़क किनारे वाले उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा सकती है जिसकी पैसों वाली थैली खिड़की वाले फ्रेम के ऊपर लटकी रहती है, गरीब घूमने वालों को फंसाने के लिए एक प्रलोभन के रूप में। चूहेदानी उस चूहे की तरफ से एक क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता यदि उसकी पदोन्नति एक कैप्टन के रूप में नहीं हुई होती, क्योंकि उस ढंग से उसे स्वयं को निर्दोष बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। मित्रतापूर्ण और उच्च सम्मान के साथ लिखा, कैप्टन वॉन स्टेहल। ग्लॉसरी, डिजेक्टेडली डिसअपॉइंटेड, हताश में। डन अप, फिनिश्ड, पूरा किया। कंटेंट्स, थिंग्स इनसाइड, चीज़ें अंदर की। व्यू, साइट, नज़ारा। जैग्ड, हियर, रफ, भद्दे। कैरेक्टर्स, राइटिंग और लेटर्स, लेखा या अक्षरों में। This track ends here. Remaining part of this chapter will be continued on the next track.